Okay, hello everyone. So we have started our unit 3, and unit 3 is all about the control flow, how we can control our programming language using various statements, right? And on that control flow, we had seen if statement, else statement. I guess we had done with that concept like if or else क्या होता है, ठीक है? So now, and those are the basic concept, those are very easy concept. Like if the condition is true, then it will perform specific block, and we can use else uh, to carry the wrong statement, right? Like if the condition is true, then perform the ईस्ट कंडी या फिर बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन द प्रोग्राम ब्लॉक इज ऑल अबाउट द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है? सो आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू है तो ये होगा, फॉल्स है तो ये होगा. दैट इज द थिंग अबाउट अवर इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, सो बहुत ही इजी कंसेप्ट था. नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द टर्म इफ एल्स. मीन्स इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. We can build one ladder of if else statement in our programming C to help the to achieve the appropriate result. Like अगर ये है तो ये होगा, उसमें भी अगर ये है तो ये होगा, ऐसे मुझे चाहिए, अगर ऐसे मुझे सिनेरियो बिल्ट अप करना है. सो to build up that scenario we can use the if else ladder or nested if else, हम लोग उसे बोलेंगे. So let us see what is the exact concept of ladder of ladder of if else या फिर nested if else, वो क्या है. Okay, so just basic revise of that if else statement is like start करेंगे हम लोग प्रोग्राम. if the condition is true, then perform this block. Okay, suppose we consider this block is east direction. Okay, so if the condition is true, then east, and if the condition is false, then else west. Okay, and apparently the program is going to be terminated. Okay, then the next part of the if else statements is nested if else statement. Okay, so nested if else statement is nothing about if else के अंदर और एक if else. देखते क्या है वो. So when a series of decision is required, like we have to perform the series of decisions. First this, then if that particular block is true, then we can go ahead deep inside on that block and perform another if else statement. If the block is same true, then perform the same action repeatedly until and unless we get the appropriate result. So अगर ऐसा सिनारियो है, मतलब एक if else के अंदर और एक if else है, so we can prefer this nested if else. Okay, so when a series of decision is required, nested if else is used. Nested if else is nothing about one if else statement inside the another. Okay, मतलब ऐसे हम लोग इन नंबर ऑफ if else statement डिजाइन कर सकते हैं एक के अंदर एक. Okay, that is nothing about nested if else statement. And nesting means using one if else construct within another one. Okay, so it is too simple. If you got the idea of if else statement, then you cannot means your brain cannot create complications about nested if else statement. अगर आपको वो concept clear है तो if else statement वाला. and if else is too easy, मतलब बहुत ही easy concept है, कोई भी स्कूल का बंदा भी उसे solve कर लेगा. एक ब्लॉक है, if the block is true, then perform this, otherwise that. Okay, so इतना सिंपल है ये. so देखते हैं उसका एक प्रोग्राम देखते हैं. like देखो यहाँ पे nested if else ये प्रोग्राम में डिजाइन किया है. now you are too familiar about the concept of this header file और main function. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर, द body, the program flow of the individual problem statement will be different. so ये तो सेम ही रहने वाला है. ठीक है, so इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे. we can skip this part and back to the main point. Okay, so here see, I'm declaring one, sorry, I'm declaring and initializing one variable named as num, where the data type of the num is integer and value of the num is 1. Okay, clear? Okay, then the next part of the program is if condition. Okay, so what is the if condition? if num is less than 10, मतलब क्या, अगर नंबर 10 से छोटा है, ठीक है,
अगर नंबर 10 से छोटा है, इफ नंबर इज लेस देन 10 देन परफॉर्म दिस ब्लॉक। अभी ये यहाँ पे चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, सॉरी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। नो 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 नो, एग्जैक्टली ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब क्या, अगर इफ num is less than 10 then perform this block, otherwise else perform this block, ठीक है। यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्लियर, गॉट द आइडिया, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। मतलब ये इफ स्टेटमेंट है और ये एल्स स्टेटमेंट है। अभी ये इफ के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट है। सी, अगर नंबर 10 से छोटा है, 10 से छोटा मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मतलब 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ, नॉट 10 क्योंकि वो लेस देन है, ठीक है। पर अगर वो नंबर, इफ नंबर इज इक्वल टू 1, ओके, नाउ इक्वल्स टू मतलब क्या, वो वैल्यू दोनों साइड में सेम होनी चाहिए। मतलब वो नंबर अगर 1 है, द नंबर इज 1, देन प्रिंट दिस एल्स प्रिंट दिस। समझ में आ गया? मतलब वो नंबर अगर 10 से छोटा है तो इधर आओ, ठीक है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली ये ब्लॉक परफॉर्म कर दो, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अगर नहीं है तो मतलब, बट इन दिस केस आवर वैल्यू इज 1, ओके, सो वो यहाँ पे आने वाला है। हाँ, सिमिलरली इफ नम इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, यस, सो वो दिस द प्रोग्राम कैन परफॉर्म दिस ब्लॉक, ओके। सो प्रिंटफ क्या किया है उसने, द वैल्यू इज परसेंट डी, द वैल्यू इज प्रिंट होने वाला है, परसेंट डी की वैल्यू क्या है 1, जिसका डेटा है इंटीजर परसेंटेज डी, ठीक है। और कॉमा करके मैंने स्कैन की नम, ये आपको मालूम है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो द वैल्यू इज 1, ये प्रिंट हो गया। अगर वैल्यू 2 रहती, 2, ठीक है, सो वो ये ब्लॉक के अंदर आता क्योंकि वो 2 क्या है, लेस देन 10 है, हा? मतलब ये ब्लॉक के अंदर वो आता, बट इट विल नॉट परफॉर्म दिस ब्लॉक बिकॉज द वैल्यू, बिकॉज द नम इज नॉट इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं है, सो इट कैन परफॉर्म दिस ब्लॉक, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर हाँ वैल्यू इज 1 तो ये परफॉर्म हो रहा है, वैल्यू इज 2 3 4 5 6 तो ये परफॉर्म हो रहा है। बट इफ द वैल्यू इज मोर देन 10 लाइक 11, हाँ 11 12 13 14 100 1000 मिलियन कोई भी रहेगी वैल्यू, सो इट विल स्कीप द एंटायर part of if statement, first if statement, okay, and the program flow is go ahead with directly with the this else statement, which is the value is greater than 10. Clear? इतना easy था। So nested if is all about the if statement inside the another if statement, okay। program का explanation दिया है। now the next concept is nested else if, मतलब उसका उल्टा। nested else if मतलब if else का उल्टा, पहले हम लोग else बाद में if, ठीक है। so nested else if is used when multi-path decisions are required. The general syntax of how else if ladders are constructed in C programming is as follows, ठीक है। so यहाँ पे देखो if test expression 1, so 1 else if, so here we cannot decide the else block like here we did this, हम लोग ने एक else के लिए ब्लॉक डिजाइन किया था, but in this case we cannot decide, we cannot put the block to else statement. instead of that else के बाद, हाँ else के बाद तुरंत हम लोग एक if कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं which tells about the second scenario, हाँ else that if tells about the third scenario and up to n scenario. Clear? Okay, so in this else if ladder the else block cannot contain one program flow, one program statement. okay, program देखते हैं। so see here हेडर फाइल मेंशन की, मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन लिखते टाइम ये एंट्री पॉइंट पे प्रोग्राम ने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। सो हियर आई एम डिक्लेयरिंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप एंड मार्क्स पास कर रहा हूँ मैं 83, ओके। सो यहाँ पे देखो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, अगर मार्क्स बड़े हैं 75 से, सो प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट क्लास। एल्स इफ, अभी एल्स के बाद एल्स पे यहाँ पे हम लोग ने ब्लॉक दिया था, यहाँ पे देखो एल्स पे ब्लॉक दिया था, हाँ, बट इन द एल्स इफ लैडर वी कैन नॉट पुट द ब्लॉक टू इंडिविजुअल एल्स, फुटे गेला प्रोग्राम, ओके। यहाँ पे देखो एल्स के बाद डायरेक्टली वी अटैच द सेकंड सिनेरियो यूजिंग इफ स्टेटमेंट, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या किया, चेक मार्क्स इज लेस देन 75 तो फर्स्ट क्लास है, अगर 65 है तो सेकंड क्लास है, लेस देन 65 है तो सेकंड क्लास है,
ठीक है, ये देखो ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट किया सेकंड क्लास, अगर वो ग्रेटर देन 55 है तो थर्ड क्लास, हाँ, और अगर ये तीनों में से भी नहीं है सो डायरेक्टली वी कैन पुट द एल्स ब्लॉक एज द फोर्थ क्लास या फिर फेल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने कितना पास किया 83, सो 83 यहाँ पे आने वाला है, 75 से वो बड़ा है, सो कितना उसको क्लास कौन सा है, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे देखो क्लियर। अगर मैं 74 लिखता तो वो यहाँ पे आता सेकेंड क्लास, हाँ, 54 लिखता है फिर 50 लिखता तो यहाँ पे आता, और अगर मैं 35 लिखता तो डायरेक्टली फेल, क्लियर, ओके। So we have seen the concept of if and else, okay, and on that if else we already seen the concept of ladder of if else, कैसे हम लोग ladder create कर सकते हैं, nested if else, बहुत ही easy part था, उसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर होने के बाद जितने भी प्रोग्राम रहेंगे तो वो देखने वाले, ठीक है। सो नाउ go ahead with the next topic as switch statement. So in the control flow, there are three decision making or branching statement in control flow in the programming in C. Focus on my words. मैं क्या बोल रहा हूँ? There are three decision making and branching statement in programming in C. So यहाँ पे जो if else देखा हम लोग ने, if else और switch, ये तीन क्या है मेरे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग मतलब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इफ द कंडीशन इज ट्रू परफॉर्म दिस ब्लॉक एल्स दैट ब्लॉक, ओके। और सिमिलरली यहाँ पे हमें स्विच स्टेटमेंट यूज करके वी कैन मेक द डिसीजन using this switch statement, or we can create one branch, we can create not the one, the n number of branches to select the appropriate result according to our situation, according to our input values, okay। So if else और ये switch statement decision making और branching है control flow में, ठीक है। So a switch statement allows a variable to be tested for equally against a list of values. तो यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट जनरेट होने वाली है, स्विच के स्टार्टिंग में ही मैं एक कंडीशन पास करूंगा, एक्सप्रेशन पास करूंगा, और वो कंडीशन के हिसाब से मैं एक लिस्ट पास करूंगा, जैसे कि सपोज इफ द डे is 1 then that day will be Monday, okay, if the day is 2nd that day will be Tuesday, 3rd के लिए Wednesday, 4th के लिए Thursday, up to 7 के लिए Saturday, और अगर मैंने कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं की है so if the day is not working day so that will be Sunday. so ऐसे मैं जनरेट करने वाला प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या था, इफ द मंडे अदरवाइज संडे, ठीक है, दो ही वैल्यू थी, अगर मुझे बहुत सारी वैल्यूज कैरी करनी है, लाइक हम लोग ने डे के बारे में देखा, वैसे हम लोग वी कैन सेट दैट फॉर मंथ्स एज वेल एंड ईयर एज वेल, 2021 22, ठीक है, या फिर एक प्लेयर के बारे में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव टू चूज द appropriate value amongst n number of values, then we can prefer this switch statement to decide what appropriate value has to be correct for our program, okay। so वो decision making के लिए हम लोग switch statement use करने वाले, okay। so the syntax हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ सिंटैक्स ही देखते हैं, उसके बाद फिर फ्लो डायग्राम एंड ऑल स्टफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे देखो, स्विच एक्सप्रेशन में दे रहा हूँ, एक कंडीशन है, एक्सप्रेशन सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इफ द डे इज वर्किंग डे देन परफॉर्म दिस, इफ द डे इज नॉट वर्किंग डे देन परफॉर्म दैट, ओके। सो केस एक्सप्रेशन 1 में सपोज 1 है, ओके, सो 1 में प्रिंट होगा मंडे, उसके बाद ब्रेक होने वाला है। ब्रेक क्या है, ब्रेक में मैं not the naturally but the manually break that individual point and program flow will be go ahead with the next line. so case 2 फिर Tuesday break, और अगर केस 1 से केस 2 मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक नहीं है, सो डिफॉल्ट क्या है मेरा संडे, सो वो संडे प्रिंट होने वाला है। ये जो मंडे सैटरडे संडे में बोला वो एग्जांपल है, वी कैन क्रिएट anything, we can put anything which have the number of values, and among that number of values we have to select one appropriate value. so on that case we use this switch statement, okay। so instead of if else या फिर ladder, ये preferable है, ये better है to select the appropriate value amongst n number of values, ठीक है। so next lecture में देखते हैं वो exactly हम लोग कैसे build up करेंगे C में।